فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ جلپلی میونسپلٹی وارڈ نمبر 27 میں سی سی روڈ کا افتتاح ایجوکیشن منسٹر سبیتا اندرا ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر جلپلی میونسپلٹی TRS پارٹی پریزیڈنٹ و کونسلر اقبال بن خلیفہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے پوری تفصیلات بتائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ صبح کی کرانے کی دکان علیم کی آفس تک جو سنا ایک سی سی روڈ ہے، سی سی 11,30,000 کی، اور ایک 5 لاکھ کا جو سنا انڈر گراؤنڈ ڈینیج کا ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ مسجد طور کالونی سے طیبہ کالونی مدرسے تک، اس کا جو سنا آج اناگریشن رکھا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ جو سنا جلد سے جلد یہ بھی کام چالو ہوگا، اور ہمارے میرے 27 وارڈ کے جو سنا عوام میرے سنگات میں جو سنا میرے کو بہت ساتھ دیتے ہیں، یہاں کی پبلک۔ آج ہمارے کو جو نا 2 سال ہو رہا ہے یہاں پر ہم الیکشن جیت کے کونسلر کا، الحمدللہ جو سنا ہمارے کو سبیتا اندرا ریڈی میڈم سے جو سنا ہم یہاں پر بہت کامہ لیے۔ 2 سال میں جو سنا ہم یہاں پر 90 لاکھ کے کامہ کرے۔ ہم یہاں پر لاک ڈاؤن کووڈ ہونے کے اس میں بھی جو سنا ہم 90 لاکھ کے کامہ کرائے ہم آج تک کا جو سنا یہ بجٹ کا۔ الحمدللہ جو سنا میڈم کا بہت بہت شکریہ۔ میڈم مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے ملک پیٹ حلقے کے اولڈ ملک پیٹ ڈویژن میں کئی ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں لایا، جس میں ویسٹ پرشانت نگر میں نئے کمیونٹی ہال کی تعمیر، ویسٹ پرشانت نگر سے تگلا گڑا تک نئی سیوریج لائن کے کاموں کا، بنجارہ بستی کمپلیکس میں سیوریج کی نئی لائن کے بچھانے کے کاموں کا، خیر النساء مسجد واحد نگر میں نئے باکس ٹرین کی تعمیر کا، نور مسجد سے RJ فنکشن ہال تک 20 لاکھ روپے کی لاگت سے نئی سیوریج لائن اور VDCC روڈ کے کاموں کا، اور اس کے علاوہ MCH کالونی میں نئی VDCC روڈ کے کاموں کا بھی افتتاح عمل میں لایا۔ اس موقع پر احمد بن عبداللہ بلالہ کے ساتھ محمد سیف الدین شفیع کارپوریٹر اولڈ ملک پیٹ ڈویژن، AIMIM کے سرگرم لیڈر سنواس رادھیکا، AE ورک GHMC EE انسپیکٹر واٹر ورک کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے۔ تلنگانہ RTC نے ریاست میں کارگو اور پارسل سروسز کے چارجز میں کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ RTC کے عہدیداروں نے یہ قیمتیں آندھرا پردیش RTC سے زیادہ ہونے کے علاوہ مارکیٹ کی قیمتوں کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے کارگو پارسل ٹیرف میں کمی کا فیصلہ کیا۔ واضح ہے کہ ٹکٹ سے حاصل ہونے والی آمدنی کے علاوہ دیگر راستوں سے آمدنی میں اضافے کے مقصد سے تلنگانہ RTC نے دسمبر 2020 میں کارگو پارسل خدمات کا آغاز کیا۔ سال 2021 میں RTC کو اس کے ذریعے 24.12 کروڑ کی آمدنی ہوئی۔ ریاست گیر سطح پر 177 کاؤنٹرز کے ذریعے کارگو پارسل خدمات دستیاب ہیں۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ایک طرف نئے ہاسپٹلز اور نئے میڈیکل کالجز قائم کیے جا رہے، دوسری طرف موجودہ ہاسپٹلز کو عصری طریقوں سے لیس کرنے کے اقدامات کیے جا رہے۔ اسی سلسلے کے طور پر لیبر رومز، ڈرینیج اور برقی کی سربراہی کے علاوہ دوسرے مرمتی کام کیے جا رہے۔ کورونا کی روک تھام، فیور سروے، ویکسینیشن کے مسئلے پر محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس طلب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ہریش راؤ نے کہا کہ کورونا کے کنٹرول کے لیے شروع کردہ فیور سروے کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کو 100% ٹیکہ اندازی بالخصوص سیکنڈ ڈوز پر توجہ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر KCR نے صحت مند تلنگانہ تشکیل دینے کا جو خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کے لیے محکمہ صحت کے عہدیدار مزید ذمہ داری سے کام کرے۔ عوام کو مفت میں کارپوریٹ طرز کا معیاری علاج فراہم کرنے کے لیے 8 نئے میڈیکل کالجز قائم کیے جا رہے، ساتھ ہی موجودہ ہاسپٹلز
में बुनियादी और असरी सहूलतें फराहम की जा रही। फिलहाल रियासत के जिले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, एरिया हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, महकमे सेहत की जानिब से मरम्मती काम अंजाम दिए जा रहे। इस पर 10 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए जा रहे। 14 अजला के हदूद में 4 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, 8 एरिया हॉस्पिटल्स, 3 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में मरम्मती काम जारी है। हैदराबाद में नाबालिग लड़की को 61 साल शख्स को फरोख्त करने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। तफसीलात के मुताबिक मुंबई के रहने वाले सैयद अल्ताफ अली की अपनी बीवी से अलहदगी हो गई, जिसके बाद वो अपनी जरूरियात की तकमील के लिए लड़की की तलाश में थे। इस दौरान वो हैदराबाद के शाहीनगर के रहने वाले अकील नामी शख्स से राब्ते में आए। अकील ने जरीना बेगम, शबाना बेगम, शमीम सुल्ताना, नसरीन बेगम, जाहिदा बी, जिनका ताल्लुक पुराने शहर से बताया गया है, उनके साथ मिलकर नाबालिग लड़की की मां अशरा बेगम और नानी चांद सुल्ताना से राब्ता कायम किया। 3 लाख रुपए में वो लड़की को फरोख्त करने के लिए राजी हो गए। लड़की को रकम के औज फरोख्त किया जा रहा था कि बावसूख जराए की इत्तला पर रचाकुंडा की शी टीम वहां पहुंच गई और तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई। जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10 में सीसी रोड, स्टॉर्म वाटर ड्रेन लाइन का कामों का इफ्तिताह अमल में आया, जो कि 44,40,000 रुपए की लागत से इफ्तिताह किया गया, जिसका इफ्तिताह तेलंगाना के वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने किया। इस मौके पर जलपल्ली म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, वार्ड नंबर 8 के नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, वार्ड नंबर 10 के काउंसलर मोहम्मद शमसुद्दीन के अलावा जलपल्ली म्यूनिसिपल स्टाफ और दीगर टीआरएस व एमआईएम के लीडर्स भी मौजूद थे। बादजा मीडिया से बात करते हुए एजुकेशन मिनिस्टर सबीता इंदिरा रेड्डी, जलपल्ली म्यूनिसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने तफसीलात भी बताई। జల్పల్లి మున్సిపాలిటీలో 3 వార్డులలో 44 లక్షలతోనే ఫౌండేషన్ వేయడం జరిగింది. మెయిన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమే ఎక్కువ తీసుకోమని ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాం. డ్రైనేజ్ సంబంధించి 44 లక్షలు పట్టణ ప్రగతిలో 14 ఫైనాన్స్లో తీసుకోవడం జరిగింది. దీంతో పాటు లోకల్లో ఉన్న ఫండ్స్తో కాకుండా గవర్నమెంట్ నుండి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు, గౌరవ మంత్రి గారు కేటీఆర్ గారిని అడిగి జల్పల్లికి సంబంధించి డ్రైన్స్కి, రోడ్స్కి సంబంధించి వర్క్ చేయడానికి అనేది ఈరోజు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు వాదిసాలానికి వచ్చిన మెయిన్ రోడ్ చూసినాం మనం. ఇప్పుడు మెయిన్ రోడ్ సంబంధించి గత 2 years నుండి ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము. ఆ రోడ్కి ఉన్న డ్రైన్ని సెట్ చేయాలి, అవుట్లెట్ తీసుకెళ్ళాలి అనేది ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము. కానీ డ్రైన్ వేసిన తర్వాత నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే బస్తీల్లో ఉన్న అందరికీ కూడా ఒకసారి డ్రైన్ వేసిన తర్వాత ఆ మెయిన్ డ్రైన్కి కనెక్షన్స్ అనేది దయచేసి మీరే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలా. ఇప్పుడు ఆ మెయిన్ రోడ్ పైన ఎందుకు డ్రైన్ వస్తుందని చూసినప్పుడు డ్రైన్ వేసినా కూడా కనెక్షన్స్ रियासत तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल और हुकूमत की जानिब से उसकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का रियासती हाई कोर्ट ने आज जायजा लिया। इस मामले की समाअत के मौके पर महकमे सेहत की जानिब से रोजाना किए जा रहे RT-PCR रैपिड टेस्टों पर रिपोर्ट पेश की गई। इस मरहले पर अर्जी गुजार ने कहा कि हुकूमत गलत आदात व शुमार पेश कर रही। अर्जी गुजार ने अदालत के इल्म में ये बात लाई कि रियासत भर में कोरोना की शिद्दत की वजह से 3 दिनों के दौरान 1,70,000 बुखार मुतासरीन की निशानदेही की गई। साथ ही अर्जी गुजार के वकील ने कहा है कि घर घर फीवर सर्वे के दौरान जो किट्स आवाम को फराहम की जा रही हैं, उनमें बच्चों को दी जाने वाली दवाएं नहीं हैं, जिस पर एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि हुकूमत वक्तन फवक्तन कोरोना की रोकथाम के लिए इक़दामात कर रही। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कोरोना की मुस्बित शरह 3.16% ही है, इसलिए रियासत में रात के कर्फ्यू के निफाज की जरूरत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 5 फरवरी को मचनतला आश्रम में एक शय नशीन पर नजर आएंगे। चिन्ना जैर स्वामी ने अपने आश्रम शमशाबाद में रामानुजुला आचार्य की 1000वीं यौम पैदाइश पर मुजस्समे मसावात की नकाब कुशाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला तेलंगाना को मदऊ किया है। टीआरएस व बीजेपी के दरमियान बढ़ती दूरियों को देखते हुए अब सियासी हलकों और सरकर्दा कायदीन की निगाहें 5 फरवरी
फरवरी को इस प्रोग्राम पर टिकी है। गुज़िश्ता चंद महीने के दौरान तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव वज़ीर आज़म और बीजेपी के खिलाफ सख्त तेवर इख्तियार किए हुए हैं और वज़ीर आज़म के तलब करदा चीफ मिनिस्टर्स के 2 अहम इजलासों को भी केसीआर ने नजरअंदाज कर दिया था और अपनी नाराजगी का इजहार किया था। लेकिन अब जबकि चिन्नाजेयर स्वामी के आश्रम का मामला है तो कहा जा रहा है कि दोनों कायदीन एक साथ शहनशीन पर नजर आ सकते हैं। सियासी हलकों की जानिब से इस बात का जायजा लिया जा रहा कि आया मोदी की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना शहनशीन पर होंगे या नहीं। वाज़िर है कि चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म से शख्सी मुलाकात करके उन्हें यदाद्री में वसी व अरीज मंदिर के इफ्तिताह के लिए मदऊ किया था और साल गुज़िश्ता के आखिर में भी उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके मुख्तलिफ उमूर पर मुलाकात की थी। लेकिन अब जो सियासी सूरत हाल है, ऐसे में रियासती और मरकजी हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा है। इसलिए ये सवाल उठाया जाने लगा है कि क्या दोनों एक शहनशीन पर नजर आएंगे। सरकारी जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर चिन्नाजेयर स्वामी से अकीदत रखते हैं, इसलिए वो तकरीब में शिरकत ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जरूरी नहीं कि चीफ मिनिस्टर उसी वक्त शिरकत करें जब वजीर आजम मौजूद रहे। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च के आदाद व शुमार के मुताबिक दिल्ली में हवा का मियार मंगल की सुबह खराब जुमरे में रहा। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 232 पर रहा। सभी के आदाद व शुमार के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जरिए शाये करदा हवा के मियार के इंडेक्स पर अपडेट फराहम करता है। आनंद विहार में 388, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 327, जहांगीरपुरी में 372 और ओखला फेज 2 में 301 इलाकों में 300 से ज्यादा AQIs रहा, जो इंतहाई खराब जुमरे में है। दिल्ली के मुलाका इलाकों में AQI इस समर के मुताबिक गाजियाबाद में 302, नोएडा में 288, गुरुग्राम में 254, फरीदाबाद में 323 और ग्रेटर नोएडा में 259 रहा। सफर के खराब जुमरे AQI के मुताबिक में रहने का इम्कान है और यौम जमहूरिया के मौके पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने की वजह से वैसा ही रहने की उम्मीद है और धूल की मदाखलत और मगरिबी खलल के मुश्तरका असर की वजह से हवा का मियार मामूली तौर पर गरीब के निचले सरे तक गिर गया है। निस्बतन मुस्तकिम माहौल और कम मिक्सिंग तय की ऊंचाई ने ऊंची सतह की धूल के नीचे आने बने को रोक दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि 26 जनवरी के बाद दिल्ली में सर्दी की लहर में शिद्दत आने का इम्कान है। मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक 25 से 28 जनवरी तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान में सर्दी की लहर के हालात का इम्कान है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।